Hello parents and my dear students, welcome to online classes of Erudite School of Learning Fatanagar. Mobile number 75680777458. Class 7 Subject GK Chapter 8 Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school classes will be open, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और जब आपके स्कूल क्लासेस ओपन होंगे तो आप अपनी टीचर से पूछ सकते हैं. नाउ इन दिस लेक्चर व्हाट वी आर गोइंग टू कंप्लीट इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 8. लेट अस इम्प्रूव अवर इंग्लिश. वी आर कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट पार्ट. ओके, नाउ हियर in the previous lecture we studied about the incorrect sentences and the correct meanings of the words given in exercise number B. We have read three points in that, or 3 word meanings. Now we are going for fourth one. हम लोग इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, हम अपने चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट यहाँ पे शुरू करके ख़त्म करने वाले हैं. हमने पहले पार्ट में कुछ सेंटेंसेस पढ़े थे जिनको करेक्ट हमने किया था और 3 वर्ड्स के हमने करेक्ट मीनिंग्स निकाले थे. अब हम फोर्थ वाले पूछेंगे. नेक्स्ट इज सोलो. सोलो ही मीन्स विथ येलोइश. येलोइश मीन्स पीलापन. In terms for humans or a person, we can see a person whose skin color is turned a little yellowish and looks unhealthy or doesn't look good with the health. So we use solo. Okay, यहाँ पे सोलो का मतलब ये होता है कि पीलापन, या किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो जब उसकी स्किन का कलर जो है वो कुछ येलोइश कलर का हो जाता है, लाइट येलो कलर का, और साथ ही में वो थोड़ा सा अनफिट दिखता है, मतलब हेल्दी नहीं दिखता है, बीमार सा या कमज़ोर सा दिखता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज़ अ टियारा. टियारा इज़ अ क्राउन मोस्टली यूज्ड बाय गर्ल्स और लेडीज़. ओके, now in C, exercise number C, how good are you at spellings? Here is a little exercise for you to find out. Here writer has given a exercise for us to check how good we can spell some words or with the spellings. यहाँ पे जो राइटर है उन्होंने हमें कुछ एक एक्सरसाइज दी है और उसमें हमें कुछ सेंटेंसेस के अंदर के वर्ड्स जो हैं उनकी स्पेलिंग्स करेक्ट करनी है और देखना है कि हम कितनी स्पेलिंग्स करेक्ट कर पाते हैं. ओके, रीराइट दिस पैसेज विद द करेक्ट स्पेलिंग्स. नाउ यहाँ पे एक पैसेज है हमारे पास जिसको हमें पढ़ना है पहले, और उसके बाद फिर इसके अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट करना है. सो फर्स्ट वी विल रीड द पैसेज. डू नॉट हैरेस others or embarrass yourself. Fulfill your ambition to skillfully maneuver the movable yacht consistently, thus benefiting all, and practice at the center. Here the spelling mistakes are in embrace, it's embraces. Okay, so spelling will be EMBARRASS. okay, next the spelling of maneuver. Here it is written MANOUVER, but the actual or correct spelling is MANOEUVERE. Okay, maneuver. Here movable spelling is MOVEABLE.
but the correct spelling is movable, movable. Here yacht is a boat, yatch is a boat. Okay, so we will use the correct spelling is yacht, yacht. Okay, in consecutively we will use the spelling of conscientiously. Okay, and last is practice. Here the spelling is written as practice. This is the wrong spelling. The right spelling is practice. Okay, practice. So the paragraph will be: do not harass others or embrace yourself. Fulfill your ambitions to skillfully maneuver the movable yacht consistently, thus benefiting all and practice at the center. So correct the spellings in this paragraph. Okay, now in exercise number D, as you know, homophones are words that sound alike but are spelled differently. Now in exercise number D, we have some of the words which are known as homophones. Homophones are those words which sounds same but their spellings are different. होमोफोन्स के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं. होमोफोन्स वो होते हैं, वो वर्ड्स होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो बिल्कुल सेम होता है बट उनकी स्पेलिंग्स और उनका मीनिंग डिफरेंट होता है. ओके, हियर आर सम क्लूज टू होमोफोनिक वर्ड्स बिगनिंग विथ V and W. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए हुए हैं, कुछ क्लूज हमें दिए हुए हैं जिनमें हमें होमोफोनिक वर्ड्स बताने हैं जो कि W और V से स्टार्ट होते हैं, ऑलमोस्ट सेम साउंड करते हैं, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है उनका, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों डिफरेंट होती है. सो द फर्स्ट वन, A, अ ड्रिंक मेड फ्रॉम द जूस ऑफ ग्रेप्स. अंगूर के जूस से बनने वाला ड्रिंक इज वाइन, WINE, वाइन. अ क्लाइंबिंग प्लांट. अब एक ऐसा प्लांट जिसकी बेल बहुत ऊपर तक जाती है उसे भी बोलते हैं वाइन, बट स्पेलिंग क्या हो जाती है? VINE, वाइन. ओके, नेक्स्ट. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ वॉइस. एक वॉइस का जो अलग मतलब निकलता है या वॉइस का जो अलग तरीके से बोला जाता है वो बोला जाता है वॉइसर. ओके, और वहीं पे अ पार्ट ऑफ अ हेलमेट. एक हेलमेट का पार्ट भी होता है, उसे भी वॉइसर बोला जाता है, लेकिन फर्स्ट वाले वॉइसर में WISER वॉइसर होता है और सेकंड पार्ट ऑफ अ हेलमेट में VISOR वॉइसर होता है. ओके, पार्ट ऑफ अ पोएम, वर्स. ओके, पोएम का जो पार्ट होता है उसे वर्स कहते हैं, VERSE, वर्स. ओके, VERSE वर्स जो होता है, जो V से स्टार्ट हो रहा है, वो होता है पोएम का पार्ट. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड. बैड की अपोजिट या उसी से मिलती जुलती लेकिन उसके विपरीत जो वर्ड होता है बैड का, वो होता है वर्स, WORSE, मतलब बहुत बुरा. ओके, नेक्स्ट इज वॉर्न अंडर अ शर्ट. शर्ट के अंदर पहने जाने वाली चीज़ उसे कहते हैं वेस्ट. ओके, VEST, वेस्ट.
अ कंपास डायरेक्शन, एक कंपास में भी डायरेक्शन होती है जिसको बोलते हैं वेस्ट, वो उसकी स्पेलिंग क्या होती है? WEST, वेस्ट, जो कि एक डायरेक्शन है। और जो शर्ट के अंदर पहनी जाती है वो होती है वेस्ट, VEST, वेस्ट। ओके। बी डिफरेंट, वेरी, एंड बी केयरफुल, वेरी। अब यहाँ पे बी डिफरेंट वाला वेरी जो है उसकी स्पेलिंग है VARY, और बी केयरफुल वाले की जो स्पेलिंग है वो है WARY। ओके, so try to focus on these type of words which sound similar but have different spelling and different meanings. Now let's know with Derek. When you ask someone their name, do not say what is your good name. Just ask what is your name. जब हम किसी से बात करते हैं और उनका नाम पूछते हैं तो हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि आपका शुभ नाम क्या है, व्हाट इज़ योर गुड नेम, क्योंकि हर नाम जो होता है वो अच्छा ही होता है, राइट। हमें डायरेक्टली पूछना चाहिए आपका नाम क्या है, व्हाट इज़ योर नेम। रिमेंबर, ओब्रायन इज़ माई सरनेम, नॉट माई टाइटल। अब यहाँ पे राइटर जो है वो ये बोल रहे हैं कि ओब्रायन जो है वो उनका सरनेम है, उनका मेन नाम या टाइटल नहीं है। ओके, सो यू हैव टू complete these exercises and try to find out some more homophonic words. Okay, so this is it for today's lecture. Thank you and have a nice day.